مردان یونیورسٹی میں توہین رسالت کے الزام میں طالب علم مشال خان کے قتل کے بعد ایک نئی ویڈیو منظر عام پر آئی ہے جس میں پی ٹی آئی کے ایک مقامی کونسلر مشال خان کے قتل کے بعد ہجوم سے خطاب کیا ہے اور قاتل کا نام ظاہر نہ کرنے کا حلف لیتے ہوئے دکھائی دیا ہے۔ پی ٹی آئی کا یہ ایک مقامی کونسلر ہے جو مشال کے قتل کے بعد ہجوم سے خطاب کر رہا ہے اور قاتل کا نام ظاہر نہ کرنے کا حلف لیتا ہے۔ مردان یونیورسٹی میں توہین رسالت کے الزام میں طالب علم مشال خان کے قتل کے بعد یہ ایک نئی ویڈیو منظر عام پر آئی ہے جس میں پاکستان تحریک انصاف کے ایک مقامی کونسلر مشال کے قتل کے بعد ہجوم سے خطاب اور قاتل کا نام ظاہر نہ کرنے کا حلف لیتا دکھائی دیتا ہے۔ یہ ویڈیو آپ اس وقت ملاحظہ کر رہے ہیں، یہ مقامی کونسلر ہے پی ٹی آئی کا جو مشال کے قتل کے بعد ہجوم سے خطاب کیا ہے اور قاتل کا نام ظاہر نہ کرنے کا حلف لیتا دکھائی دیتا ہے۔ مردان یونیورسٹی میں توہین رسالت کے الزام میں طالب علم مشال خان کے قتل کے بعد ایک نئی ویڈیو منظر عام پر آئی ہے جس میں مقامی کونسلر مشال کے قتل کے بعد ہجوم سے خطاب اور قاتل کا نام ظاہر نہ کرنے کا حلف لیتا دکھائی دیتا ہے۔ مزید جانتے ہیں نمائندہ 24 نیوز پشاور عظمت علی شاہ سے۔ عظمت، اپڈیٹ کیجیے گا اس ویڈیو میں مزید کیا دکھایا گیا ہے؟ بالکل، یہ ویڈیو جو ہے یہ ابھی کچھ ہی دیر پہلے منظر عام پہ آئی ہے جس میں سے جب مشال خان پر جن اسٹوڈنٹس نے تشدد کیا تھا تو اس میں ایک لڑکا جو کہ یونیورسٹی سے ہے بھی نہیں ہے، یونیورسٹی کا طالب علم بھی نہیں ہے جبکہ نئی یونیورسٹی کا امپلائی ہے، جو کہ عارف نام بتایا جا رہا ہے، جو کہ خود ویڈیو میں بتا رہا ہے کہ میرا عارف نام ہے اور میرے والد کا نام طور خان ہے، اگر کسی نے ایف آئی آر کروانی ہو تو وہ مجھ پر کرے، جبکہ ساتھ میں یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ اگر جس نے فائر کیا ہے اور اس کا نام بھی نہیں بتایا جائے گا، اگر کسی نے نام بتایا تو اس طرح یعنی کہ اس کو مذہب کی قسمیں دی گئی ہیں ان لوگوں کو جہاں پہ وہ موجود تھے، جو اسٹوڈنٹس وہاں پہ موجود ہیں، اور یہ بھی اس نے بارہا یہ کہا ہوا ہے کہ اگر کسی نے بھی ایف آئی آر کروانی ہے تو میرا نام، اس نے اپنے نام کے ساتھ اپنے باپ کے نام کے ساتھ پورا ڈیٹیل دی ہے کہ یہ میرا نام ہے، میرے والد کا نام طور خان ہے، اگر کسی نے بھی ایف آئی آر کروانی ہے تو وہ مجھ پر کرے، جس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ وہاں پر اس سانحے کے بعد بھی یہاں پہ یہ اسٹوڈنٹ موجود تھے اور وہ ایک دوسرے کے مبارکباد بھی دے رہے ہیں، جس طرح ویڈیو میں دکھایا جا رہا ہے وہ بتا بھی رہے ہیں، ایک دوسرے کو مبارکباد بھی دے رہے ہیں۔ تو جب یہ اس سے پہلے جو ویڈیوز منظر عام پہ آئی تھی اس میں پولیس جو ہے بارہا ان لوگوں کو دھکیلنے کی کوشش کر رہی تھی، جو کہ اور بھی ویڈیوز ہوں اس میں بھی یہ جو عارف نامی لڑکا ہے یہ بھی جو کہ یوتھ کونسلر بھی ہے، جو کہ تحصیل کونسلر بھی ہے یا مردان کا اور ضلع مردان کا جنرل سیکرٹری بھی ہے، جس کا تعلق جو ہے پاکستان تحریک انصاف سے بتایا جاتا ہے، تو یہ بھی پہلے جو ویڈیو تھی اس میں بھی ان کو دکھایا گیا ہے تشدد کرتے ہوئے، لیکن یہ جو اب ویڈیو سامنے آئی ہے تو اس میں بھی یہ بارہا یہی کہہ رہا ہے کہ اگر کسی نے ایف آئی آر کروانی ہے، یعنی کہ یہ خود یہ تسلیم کر رہا ہے کہ اس چیز میں یہ تشدد میں شامل تھا اور اگر اس کے خلاف کارروائی کسی کے بھی خلاف کارروائی کرنی ہو تو پہلے میرا نام دیا جائے گا۔ جی عظمت علی شاہ، شکریہ۔ آپ کو بتائیں کہ مردان یونیورسٹی میں توہین رسالت کے الزام میں طالب علم مشال خان کے قتل کے بعد ایک نئی ویڈیو منظر عام پر آئی ہے جس میں ایک مقامی کونسلر مشال کے قتل کے بعد ہجوم سے خطاب کرتا ہے اور قاتل کا نام ظاہر نہ کرنے کا حلف لیتا دکھائی دیتا ہے۔ یہ مناظر آپ دیکھ رہے ہیں، یہ مقامی کونسلر ہے جو اپنا نام بتاتا ہے، اپنے والد کا نام بتاتا ہے اور کہتا ہے کہ اگر کسی نے ایف آئی آر درج کروانی ہے تو وہ میرے نام پر درج کروائے، ہجوم سے خطاب کرتا ہے اور قاتل کا نام ظاہر نہ کرنے کا حلف لیتا ہے۔ یہ ہجوم سے مردان یونیورسٹی میں توہین رسالت کے الزام میں طالب علم مشال خان کے قتل کے بعد ایک نئی ویڈیو منظر عام پر آئی ہے۔ عظمت علی سے ایک بار پھر بات کرتے ہیں۔ عظمت، بتائیے گا اس ویڈیو کے بعد اس شخص کے خلاف کوئی کارروائی کی گئی؟ جی بالکل، جب ہماری پولیس سے بات ہوئی ہے تو پولیس جو ہے وہ آج چوتھا دن ہے، پانچواں دن ہے اس سانحے کو ہوئے، لیکن ابھی تک جو پولیس ہے وہ میڈیا کے سامنے نہیں آ رہی، ان کو کوئی بیان نہیں دے رہی، جبکہ صرف جو مردان کی پولیس ہے وہ ٹکرز کے حد تک یا جو ایک خبر وہ خود بنا کے میڈیا کے پرسنز کو بھیج رہے ہیں تو اس ہی حد تک وہ محدود ہیں، جبکہ ہماری میڈیا جب جتنے بھی افراد ہیں میڈیا کے اگر وہ ان سے اپروچ کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو وہ ان کو کوئی بھی اپروچ نہیں کر رہا ہے، پولیس اس بارے میں کچھ بھی نہیں کہہ رہی، جبکہ جو کہ نامزد ملزمان ہیں اس میں سے تقریباً 24 افراد جو ہیں ابھی تک وہ زیر حراست ہیں، جن میں سے اسٹوڈنٹس بھی ہیں، جن میں یونیورسٹی فیکلٹی کے تقریباً 7 ممبرز بھی ہیں، جس میں سے ایک
तहसील काउंसलर जो कि आरिफ है, इसको भी जो पुलिस है उन्होंने गिरफ्तार किया हुआ है। लेकिन जब इसके बारे में जब तफ्तीश या बारे में या इस तरह की जितना भी सान्या हुए इसमें अगर हम पुलिस से बात करते हैं तो वो भी नाला नजर आते हैं, वो नहीं जो है इस इशू के बारे में बात करना पसंद करते हैं। जबकि ना वो फोन उठाते हैं पुलिस, ना हम जब अप्रोच करते हैं ना वो शॉट देते हैं। किसी तरीके से भी जब हम पुलिस से बात करने की कोशिश करते हैं तो वो इसी वजह से हमें या तो फोन नहीं उठाते और या हमसे बात करने की कोशिश नहीं करते। लेकिन ये बात जो है ज़राए से मालूम हुई कि ये एक जो आरिफ नामी लड़का है जो कि इस वीडियो में नजर आ रहा है, ये भी गिरफ्तार शुजान जो 24 अफराद हैं उनमें शामिल है, जिसमें साथ में 7 जो यूनिवर्सिटी के जो मुलाजिमीन है वो भी शामिल है, जबकि बाकी जितने भी स्टूडेंट्स थे जो कि वीडियो फुटेजेस या इस तरह सीसीटीवी फुटेज की मदद से पुलिस ने ली थी तो वो भी उनकी मदद से इनको गिरफ्तार किया गया है। लेकिन साथ में जब कल आईजीपी खैबर पख्तूनख्वा सलाहुद्दीन साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो उसमें भी यही कहा गया था कि ये इस केस के बारे में बारहा बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन दी गई थी, लेकिन जो जिली इंतजामिया है, जो जिले के डीपीओ है या डीआईजी है, तो वो अभी तक जो है इस केस के बारे में मीडिया को आगाह नहीं कर रही है। जी अच्छा अजमत, ये बताइएगा इस वीडियो से मजीद पेशरफ्त क्या हुई है केस में, इस बारे में कुछ पता चल सका? नहीं, अभी तक तो इस तरह नहीं, क्योंकि ये जो इसमें जो लड़का दिखाई दे रहा है जिसका नाम आरिफ है, जो कि खुद कह रहा है कि मेरा नाम आरिफ है और मेरे वालिद साहब का नाम तूर खान है, तो इसको ज़राए के मुताबिक इसको गिरफ्तार कर लिया गया है। पहले ही इसको गिरफ्तार कर लिया गया था, लेकिन कल वजाहत के बयान के बाद जो वजाहत स्टूडेंट था उसने जो अपने बयान दिया था, इतराफ़ किया था, और उससे पहले अब्दुल्ला ने जो बयान दिया था, तो उसकी तरफ और भी गिरफ्तारियां हुई, जिसमें तकरीबन आज 5 अफराद को गिरफ्तार किया गया है इस सानहे में मुलविस अफराद से। लेकिन अभी भी ताल जो उसी वक्त उसी दिन जब पुलिस वहां पे आई, वहां पे पहुंच की, तो तकरीबन उनका कहना था पुलिस के मुताबिक 59 अफराद जो थे तकरीबन उनको गिरफ्तार किया गया था, जिनको पुलिस सीसीटीवी फुटेज या दूसरी जितनी भी मोबाइल से वीडियोस बनाई गई थी तो उनकी मदद से उनको गिरफ्तार किया गया था। लेकिन अभी तक ताहाल जो हमारी पुलिस से बात हो रही है या उनकी जो इंफॉर्मेशन हम तक पहुंच रही है। जी अजमत अली शाह, आप हमारे साथ ही रहेगा, हमें ज्वाइन किया है मजहबी स्कॉलर मुफ्ती नईम साहब ने, उनसे बात करते हैं। मुफ्ती साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। कहिएगा, मिशाल के कत्ल के बाद हल्फ लिया गया वहां पर मौजूद हुजूम से कि कोई पुलिस को नहीं बताएगा, कोई गवाही नहीं देगा, किस तरह से देखते हैं आप इस रवैये को? मैं समझता हूँ कि ये वो तबका है जो मजहब को, इस्लाम को और पाकिस्तान को बदनाम कर रहा है दुनिया के अंदर, ये बतलाने के लिए कि जी पाकिस्तानी अवाम ऐसी है कि जो लोगों को मार कर गलत तरीके से और इस तरीके से करती है, और ये सारा अमल जो कुछ हुआ है मशाल के खिलाफ भी उसके ऊपर जुल्म हुआ है, ज्यादती हुई है, लिहाजा किसी सूरत में उन लोगों को माफ न किए जाए। और मैं समझता हूँ एक बड़ी साजिश के तहत ये हुआ है, तो इस पर पूरा गौर करना चाहिए कि ताकि मजहब बदनाम हो दुनिया के अंदर के जी मजहबी लोग तो ऐसे होते हैं, इसलिए इस बारे में हुकूमत को सख्त रवैया इख्तियार करना चाहिए। मुफ्ती साहब, हलफ लिए जाते हैं, हुजूम को इकट्ठा किया जाता है, इस्लाम में इन चीज़ों की इजाज़त है? मजहब के मनाफी नहीं है ये सारी चीज़ें? दुनिया की किसी कानून में भी इजाज़त नहीं है। अच्छा ये कहिएगा कि अगर कोई वाकया मुस्तकबिल में ऐसा कोई पेश आता है, एक माशरे के तौर पर हमारा क्या फ़र्ज है? देखिए, मुस्तकबिल में गारंटी कोई नहीं आ सकता है। अगर हुकूमत ने अपने रवैये में नरमी की और मुजरिमों को सजा नहीं दी, फिर तो ये वाकया हो सकता है। और अगर हुकूमत ने सख्ती से इस पर अमल किया तो मैं समझता हूँ कि फिर वो सद्देबाब हो। मुजरिम को जब सही माना में सजा नहीं मिलती तो जुर्म बढ़ता है, और अगर मुजरिम को सही माना में सजा मिल जाए तो जुर्म जो है खुद ब खुद खत्म हो जाता है। अब ये हुकूमत के ऊपर है कि हुकूमत जो है क्या तफ्तीश करती है और किसको सजा देती है, ये हुकूमत की जिम्मेदारी है। मुफ्ती साहब, अफवाहों पर यकीन रखा गया है, यहाँ पर ये सारी सूरत हाल आपने भी देखी, फॉलो कर रहे हैं सारी सूरत हाल को आप भी। ऐसी अगर कोई अफवाह आती है तो उसकी तस्दीक के लिए कौन सा जरिया अपनाया जाए, किस तरह से उसकी तस्दीक की जाए कि आया वाकई ऐसा है, और अगर ऐसा है भी क्या कोई कानून हमें इजाज़त देता है कि खुद से कानून को हाथ में लिया जाए और खुद से फैसला किया जाए? अफवाहों पर तो अमल करने के लिए किसी तरह भी किसी कानून में भी इजाज़त नहीं कि अफवाह के ऊपर इंसान की जान ले ली जाए। और दूसरी बात यह है कि अगर मिसाल के तौर पर मैं ये कहता हूँ कि मशाल ने एक काम किया भी है, थोड़ी देर के लिए मान ले, तो अभी तो इस पर इल्ज़ाम था, इल्ज़ाम की बुनियाद पर किसी को मानना न किसी भी कानून के अंदर इजाज़त नहीं जब तक कि जुर्म साबित ना।
तो इसलिए हर सूरत के अंदर ये सारी बातें गलत हैं। मजहबी स्कॉलर मुफ्ती नईम साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। आपको बताएं कि मरदान यूनिवर्सिटी में तौहीन रिसालत के इल्ज़ाम में तालिब इल्म मिशाल खान के कत्ल के बाद एक नई वीडियो मंजर आम पर आई है जिसमें PTI के एक मकामी काउंसलर को देखा गया है और खिताब करता हुआ देखा गया है। इसी पर बात करते हैं। फ़खर काका खेल, ब्यूरो चीफ पेशावर हमारे साथ मौजूद है। उनसे फ़खर, वीडियो में जिस शख्स को देखा गया है इसकी गिरफ्तारी हो गई? जी, इस हवाले से तो अभी तक पुलिस ने हमें कुछ भी अपडेट नहीं किया। सम टोटल के हवाले से भी मुख्तलिफ जो अदाद शुमार हैं वो बताए जा रहे हैं। IGP ने भी कल कहा था एक दफ़ा 50 का अदद का, दूसरी दफ़ा उन्होंने 26 का, और तीसरी दफ़ा उन्होंने 20, और चौथी दफ़ा उन्होंने 15 और 16 का। असल इशू ये है कि जो असल बंदा है जिसने फायरिंग की है उसके हवाले से अभी तक ना तो उसकी शनाख्त बताई गई है, और आज 5वां दिन हो गया है। आज खुद PTI के सरबरा इमरान खान ने भी ज़ेदा में वाक़या मशाल खान के इलाके का दौरा किया, उनके वालिदैन से बातचीत भी की, और इस मौके पर जब उनसे ये पूछा गया, इस मज़कूरा जो PTI के काउंसलर हैं, आरिफ इसका नाम है, इसके हवाले से जब उनसे सवाल किया गया तो उन्होंने 2 टोक अल्फाज में यही जवाब दिया कि जो जिम्मेदार है वो कोई भी हो, कानून की गिरफ्त से बच नहीं पाएगा। अलबत्ता इस वीडियो में, जैसे कि हमारे नाज़रीन देख भी सकते हैं, जो अलमिया है वो ये कि इस वक्त पुलिस कहाँ थी। इतना हाई लेवल केस पहुंच गया, लेकिन जो मुकामी पुलिस थी, मैं ये समझता हूँ कि ज़्यादातर जिम्मेदारी यूनिवर्सिटी इंतज़ामिया उस पुलिस के ऊपर है। अगर बार बार ये कह रहे हैं कि इस मॉब के अंदर सिर्फ PTI के कारकुन नहीं थे, PTI के जो स्टूडेंट विंग के खुद PTI का ये काउंसलर है। सवाल ये भी है कि ये उस वक्त, क्योंकि वीडियो में उसको भी देखा गया था मशाल खान के कत्ल के वक्त जो हुजूम था उसके अंदर ये साहब भी मौजूद थे, और ना सिर्फ ये बल्कि दीगर जो सियासी जमातों के स्टूडेंट विंग है उनके कारकुनान की भी भारी तादाद उस वीडियो के अंदर साफ नजर आ रही है। सवाल ये है, जैसे कि वीडियो के अंदर जो काउंसलर आरिफ है वो इस हुजूम को कहता है कि जो भी शख्स उस शख्स की निशानदही करेगा जिसने गोली चलाई, वो एक लिहाज से गुस्ताखे रसूल वो तस्वुर किया जाएगा और रसूल खुदा से गद्दारी का मुर्तकिब होगा। तो सवाल ये है कि जब वो इतना हजूम इकट्ठा कर रहा था उस वक्त मर्दान पुलिस कहाँ थी। गुज़िश्ता रोज़ भी मर्दान अब्दुल खान यूनिवर्सिटी के फैकल्टी मेंबर ने ये सब बार बार ये कहा कि DSP साहब जो हैदर नाम बताया जाता है वो भी मौके पर मौजूद थे। उनका ये भी कहना था कि SSP ऑपरेशन वो एडमिनिस्ट्रेशन ब्लॉक के अंदर मौजूद थे, वो उनसे बार बार इल्तिजा कर रहे थे, लेकिन पुलिस बिल्कुल एक्शन नहीं ले रही थी। इस वक्त भी अगर वीडियो में देखा जाए तो काफ़ी तादाद मौजूद है। ये एन रोड के ऊपर ये इज्तिमा मुनक्किद किया जा रहा था, लेकिन हम देख रहे हैं कि कोई ये बताइएगा कि ये यूनिवर्सिटी के बाहर के मनाजिर हैं? जी, ये यूनिवर्सिटी से बाहर का इलाका है। मेन मलाकान चौक और जो यूनिवर्सिटी की तरफ जो शाहराह जाती है उसके ऊपर ये जो काउंसलर है ये इकट्ठे हुए थे, और साथ में ये मशाल खान के कत्ल के फौरन बाद जब गिरफ्तारियां अमल में लाई जा रही थी तो इस मौके पर काउंसलर आरिफ ने जो मौजूद बलवा करने वाले स्टूडेंट थे उनसे खिताब करते हुए, क्योंकि यूनिवर्सिटी में फायरिंग के बाद और मशाल खान के साथ जो कुछ हुआ उसके बाद पुलिस मुतहर्रिक हो गई, पकड़ दकड़ का अमल शुरू हो गया। तो ऐसे में ये स्टूडेंट वहां से निकले और मेन जो GT रोड है वहां पर एक बार फिर उन्होंने इस इज्तिमा की शक्ल इख्तियार की जो आपको इस वक्त भी नजर आ रही है। ये यूनिवर्सिटी से कुछ ही फासले पर ये मुकाम है जहां पर स्टूडेंट इकट्ठे हुए और यहाँ के बाद फिर ये डिस्पर्स्ड हो गए, और अभी तक इनमें से बहुत सारे लोग जो है वो लापता हैं, उनके लिए छापे मारे जा रहे हैं। जहाँ तक काउंसलर आरिफ की बात है तो इनका नाम तो मौजूद था, हमने खुद देखा शेख मलतून थाने में जो यूनिवर्सिटी जिस थाने की हुदूद में आती है उसके अंदर इस मौसूफ का नाम भी मौजूद है, लेकिन अभी तक पुलिस ने कोई इंफॉर्मेशन हमें नहीं दी कि आया किन किन लोगों को गिरफ्तार किया गया है। वजाहत की स्टेटमेंट सामने आई, उससे कबल अब्दुल्ला की स्टेटमेंट आई, लेकिन पुलिस मुकम्मल तौर पर खामोश। और ये अब से नहीं, वकूए के फौरन बाद हम बार बार में बजाते खुद और 24 की टीम थाना शेख मलतून पहुंची,
हमने ना सिर्फ वहाँ के मुकामी SHO से सलीम खान उसका नाम है, उनसे राबिता करने की कोशिश की, बल्कि खुद DPO मियां सईद जिन्होंने काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट से वो यहाँ पर शिफ्ट हुए हैं और इस वक्त DPO मर्दान है, उनको बार बार टेक्स्ट मैसेजेस भी भेजे, लेकिन उन्होंने खामोशी इख्तियार की। यही वजह थी कि हमने गुज़िश्ता रोज़ भी लाइव विद मुजाहिद बरेलवी के शो में भी इस बात का इरादा किया कि अगर इंफॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं की जाती और हमें एक्सेस नहीं दी जाती तो जाहिर बात है फिर स्पेकुलेशन रूमर्स बढ़ते रहते हैं। और यही वजह थी है कि इस वक्त मर्दान के अंदर स्टूडेंट्स हैं या फिर यूनिवर्सिटी इंतज़ामिया है, उनका ये मानना है और वो इल्ज़ाम लगा रहे हैं DSP खैदर के ऊपर कि वो उधर मौजूद था और रिपोर्टेडली बाज़ मीडिया आउटलेट्स ने इसको रिपोर्ट भी किया कि उसको जब कहा गया कि अंदर मशाल खान की जान खतरे में है तो उसने कहा जाने दो, जो कुछ होगा देखा जाएगा, लेकिन वो आगे नहीं बढ़े। आई विटनेस ने अकाउंट में ये भी लिखा है कि 3 के करीब पुलिस मोबाइल वैन मौजूद थी। अगर देखा जाए इससे कबल अब्दुल्ला के ऊपर जब हमला होता है उस वक्त मशाल खान जिंदा थे, उस वक्त मशाल खान यूनिवर्सिटी के अंदर मौजूद थे। उसको रेस्क्यू कराने के लिए, सेफ पैसेज देने के लिए ठीक ठाक पुलिस की फोर्स उस इलाके के अंदर मौजूद थी। अब वो ये कह रही है कि हम बाद जर्नलिज्म डिपार्टमेंट जो शोबा अबलागियात है वहाँ से फिर हम जो मरकजी इंतज़ामिया के दफातर है वहाँ चले गए। हालांकि जो गुज़िश्ता रोज़ कन्फेशन किया है फैकल्टी मेंबर ने, उसका ये मानना है कि मैं खुद पुलिस एहलकारों के पास गया, इंतज़ामिया के पास गया और मैंने गड़गड़ा कर उनको कहा कि मशाल खान को बचाया जाए कि इस दौरान फायरिंग की आवाज़ हुई, इस दौरान खबर आई कि मशाल खान को मार दिया गया है। साथ में जो फैकल्टी मेंबर है, जब उनसे सवाल किया मीडिया ने कि क्या जो नोटिफिकेशन जारी हुआ था जिनमें 3 अब्दुल्ला और मशाल खान समेत 3 जो अफराद थे जिनके ज़ुबैर जिनके हवाले से कहा गया कि इनको रिस्टिकेट किया गया है ब्लास्फेमस मटेरियल रखने के या इस जो इल्ज़ामात हैं इनके ऊपर, इसकी वजह से हम उनको यूनिवर्सिटी से बर्खास्त कर रहे हैं, तो उस फैकल्टी मेंबर ने यक लख्त दो ठोक उस नोटिफिकेशन को ठुकराया और कहा यह सब एक फ्रॉड है। अब तक की जो आई विटनेस अकाउंट, मीडिया रिपोर्ट्स और जो तफ्तीशी इदारे हैं, इसे लग रहा है कि ये पॉलिटिकली मोटिवेटेड अंदरूनी तौर पर यूनिवर्सिटी इंतज़ामिया के अंदर, क्योंकि मशाल खान के हवाले से जो उसने कन्फेशन स्टेटमेंट अब्दुल्ला ने रिकॉर्ड करवाई है उसका ये कहना था कि वो क्रिटिक था यूनिवर्सिटी के अंदर करप्शन का और बार बार वो सामने आता था यूनिवर्सिटी के अंदर जो करप्शन हो रही है, जो बदइंतज़ामी हो रही है, और यही वजह थी कि ग्रजेस थे यूनिवर्सिटी इंतज़ामिया को मशाल खान के हवाले से। और अब्दुल्ला ने यह भी माना कि इस दौरान उसका राबिता भी था मशाल खान के साथ और उसने फ़ोन पर उसे बताया भी, जिसकी बाद तस्दीक भी की फैकल्टी मेंबर ने कि बिल्कुल वो राबिते में थे और वो बार बार कह रहा था कि ये पॉलिटिकली मोटिवेटेड मॉब है जिसको मारने के लिए आ रहे हैं। हालांकि इसका तौहीन रिसालत के साथ कोई ताल्लुक नहीं, क्योंकि कभी ज़िंदगी में उन्होंने ऐसी हरकत नहीं की जिसके हवाले से कहा जाए कि मशाल खान या वो खुद तौहीन रिसालत का मुर्तकिब हुआ हो। ये शेयर बदइंतज़ामी है जो इस वक्त भी हमें स्क्रीन पर नज़र आ रही है और लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज की नाकामी है, जिसमें ज़ाहिरी बात है लीड फोर्स जो मुकामी पुलिस है वो नज़र आती है। कल IGP सलाउद्दीन महसूद की भी आप अगर प्रेस कॉन्फ्रेंस देख लें, काफ़ी शेटर्ड महसूस होती है, मुख्तलिफ सवालों का जवाब देने से वो कतराते हैं। अरेस्ट नंबर अगर उसके टोटल देखे जाए, जैसे कि मैंने अर्ज किया, पहले वो 50 से ज़ायद का कहते हैं, इसके बाद 26 तादाद बताते हैं कि 26 मुल्ज़िमान गिरफ्तार हुए, इसके बाद 11 आउट ऑफ 16 का जिक्र करते हैं। तो अभी तक जो मरबूत तौर पर कोई फैक्ट्स एंड फिगर हमें प्रोवाइड नहीं किए गए, उल्टा जब हम उनसे राबिता करने की कोशिश करते हैं वो गुरेज करते हैं, कहते हैं अभी तफ्तीशी मराहिल में है। तो हैरानगी की बात यह है कि 5 दिन गुजरने के बावजूद, CCTV कैमरास होने के बावजूद, खुद मोबाइल फुटेज होने के बावजूद और खुद इस वक्त जो आप स्क्रीन पर आप देख सकते हैं कि ये लोग खड़े हुए खुलेआम रिट चैलेंज कर रहे हैं, लेकिन अभी तक हमारे पास गवर्नमेंट की जानिब से कोई स्टांस नहीं आया, खुसूसन पुलिस की जानिब से। अमूमन हम देखते हैं जो मुहज़्ज़ब मुआशरे होते हैं उसमें जो भी एक्ट होता है, क्रिमिनल एक्ट, उसके बाद लोकल जो पुलिस होती है वो वक्तन फ़वक्तन अपडेट्स देती रहती है मीडिया को, मीडिया का सामना करती है। लेकिन अब तक जिस तरीके से पुलिस हक़ाइक़ को छुपा रही है, ऐसे लग रहा है कि दाल में कुछ
कुछ काला है। हम अपनी जानिब से तो कुछ नहीं कह सकते, लेकिन इसने एक चीज को जन्म दिया है और वो है अफवाहें। अफवाहों की एक मिल बनी हुई है, तरह तरह की बातें। जी ठीक है, फखर काका खेल, ब्यूरो चीफ पेशावर, बहुत शुक्रिया आपका। मिशाल खान केस पर आरपीओ मर्दान ने सेनेट की कायमा कमेटी बराए दाखिला को ब्रीफिंग दी है। आरपीओ मर्दान मोहम्मद आलम शिनवारी ने कमेटी को यह बताया कि मिशाल को एडमिन ब्लॉक में गोलियां मारी गईं। दोपहर 1 बजे के करीब पुलिस को वली खान यूनिवर्सिटी में बुलाया गया। डीएसपी ने तशद्दुद का निशाना बनने वाले अब्दुल्ला को रेस्क्यू किया। मुश्तइल अफराद मिशाल खान की लाश को जलाना चाहते थे, लेकिन पुलिस ने ऐसा होने से रोका। मिशाल खान केस पर आरपीओ मर्दान ने सेनेट की कायमा कमेटी बराए दाखिला को ब्रीफिंग दी है। आरपीओ मर्दान मोहम्मद आलम शिनवारी का यह कहना है कि मिशाल को एडमिन ब्लॉक में गोलियां मारी गई। दोपहर 1 बजे के करीब पुलिस को वली खान यूनिवर्सिटी में बुलाया गया। डीएसपी ने तशद्दुद का निशाना बनने वाले अब्दुल्ला को रेस्क्यू किया।